Rise in human population has led to many wildlife conflicts. We are going to discuss about human wildlife conflict. Myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Now as I had told you, rise in human population. जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे वाइल्ड लाइफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है. We can see the footprints of human being and other wild animals. तो फुटप्रिंट जो है देखिए सबके ही बढ़ रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन ह्यूमन का बढ़ रहा है, ज़रूरतें ह्यूमन की बढ़ रही है, लालच ह्यूमन का बढ़ रहा है, द ग्रीड फॉर स्पेस, द ग्रीड फॉर फूड, all this is creating conflict with wildlife. As we can see in this photo, that elephant has come from the forest, it is entering into the crops of the human being. एलिफेंट जो है जंगल में से निकल करके खेतों में घुस रहा है. So this is creating a conflict among the human being and the elephant. Either the elephant is damaging the crop or it may hurt the people. In any way, both the sides may be harmed. Either human will harm the animal or the animal will harm the human. In this, we have seen always come along and we are going through newspapers, we see many conflicts of wildlife. कई फोटोस आप अक्सर जो है अखबारों में देखते हैं, टीवी में न्यूज़ देखते हैं कि जंगल से जो है वो जानवर गांव में घुस गया है, शहरों में घुस गया है. कोटा शहर में भी आपने कई ऐसे केसेस सुने जिसमें लेपर्ड कॉलोनी में आ गया है या भालू कॉलोनी में आ गया है, घरों के आसपास घूमता हुआ नज़र आया है. तो दिस विल क्रिएट फियर अमॉन्ग द पीपल. लोगों को क्योंकि वाइल्ड लाइफ का मतलब ही लगता है कि कोई जंगली जानवर, और जंगली जानवर का मतलब वो हार्म पहुंचाने वाला ही है. यही सोचकर क्या है ह्यूमन बीइंग उस पर तुरंत रिएक्ट करता है और उसको मारने के लिए तत्पर हो जाता है. नाउ एज वी कैन सी इन दिस 80,000 एनिमल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट केसेस हैव बीन रिकॉर्डेड इन इंडिया ईच ईयर. प्रति वर्ष भारत में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट 80,000 केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और 28,000 तो सिर्फ कर्नाटका के हैं. Now in Karnataka, we all know that the elephant population is in good number. Human elephant conflict is very common in Karnataka. And because of this conflict, we can see that every year there are around 30,000 cases in Karnataka itself. And in India, it is around 80,000 conflict cases. Now, this man animal conflict, which is also known as human wildlife conflict, if we see in the years between 2013 to 2016-17, 98 deaths due to tiger attacks from 13-14 to 16-17 has been recorded. 2,804 deaths due to elephant attacks. So what we see that the number of attack by elephant is too much. And in our previous slide we have seen the comparison of India and Karnataka. So Karnataka itself is having 30,000 cases. So why the number of cases are so much? We can see that there are the death rate due to this elephant attacks is very high, and the money spent for the conflict mitigation के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है वो 15 करोड़ के करीब. The steps taken to mitigate the conflict, elephant conflict जो है elephant proof trenches, वो 584 किलोमीटर लंबाई में ट्रेंचेस बनाए गए ताकि एलिफेंट जो है वो शहर में या गाँवों की तरफ नहीं आए. 1500 किलोमीटर ऑफ सोलार पावर्ड फेंस इस तरह के लगाए गए जिससे सोलार पावर्ड है ताकि उसमें बिजली के झटके लग सके और एलिफेंट जो है वो आर पार गाँव के अंदर न घुस सके. 35 किलोमीटर का जो है एलिफेंट प्रूफ वॉल्स, दीवारें बनाई गई जिससे कि एलिफेंट जो है वो उसको क्रॉस करके नहीं आए.
और इसी तरह के स्टोन पिच ट्रेंचर्स और बाउंड्रीज ये सब बनाने में 15 करोड़ जो है वो मिटिगेशन कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाने में जो है वो यूज़ किया जा रहा है पैसा. So what we see that a lot of amount is being invested for clearing these conflicts. So it is better that precaution should be taken और conflict होना ही नहीं चाहिए. So what is this conflict? The conflict is an incompatibility between opinions, principles, behavior. इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन ओपिनियंस और प्रिंसिपल बिहेवियर का मतलब क्या है कि दोनों में जो है कंपैटिबिलिटी नहीं है. देयर आर डिफरेंसेस. वाइल्ड लाइफ की अपनी ज़रूरतें अलग है, ह्यूमन की अपनी ज़रूरतें अलग है. दोनों जब आमने सामने एक ही जगह आ जाते हैं तो दैट विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द ओपिनियन एंड द बिहेवियर. Now, any conflict arises when the behavior of one, either people or wildlife, is unacceptability disadvantageous to the other. तो अब कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज होगा? क्योंकि बिहेवियर जो है वो अनएक्सेप्टेबल होगा, एक दूसरे के लिए जो है मतलब दूसरे के लिए वो डिसएडवांटेज रहेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो तब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा. Park people interface conflict and objectives of human dimensions in management. We are going to see about this. That what is human wildlife conflict? Conflict occurs when wildlife requirements overlap the requirements of human population. तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज कब हो रहा है? जब वाइल्ड लाइफ का जो रिक्वायरमेंट है, जो वन्य जीव हैं, उनकी ज़रूरतें जो है ह्यूमन की ज़रूरतों के साथ ओवरलैप होती हैं. जैसे कि अगर वन्य जीवों को प्यास लगी, उनको पानी की कमी महसूस हुआ, तो वो गाँवों की तरफ आए. तो गाँव में जो पानी जहाँ अवेलेबल है, या तो उस सोर्स तक जा रहे हैं वो, या जो भोजन उनको वहाँ पे अगर जंगल में कम मिल रहा है तो वो गाँवों की तरफ बढ़ रहे हैं. तो ये जो ज़रूरतें जो है अगर ओवरलैप हो रहे हैं, दैट विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट. Species most exposed to conflict are also shown to be more prone to extinction due to human induced mortality. जो स्पीसीज सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, जैसे कि अक्सर आने वाले एनिमल्स हम कौन से देखते हैं? टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, एलिफेंट्स. तो दे बिकम मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन. क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो उस जानवर को मारने के लिए इंड्यूस हो जाता है. क्यों? उसको आदमी को खतरा है वन्य जीवों से. जो जीव आ रहे हैं वो उनको जंगली जीव नज़र आ रहे हैं, खतरनाक जीव नज़र आ रहे हैं, तो वो उनको बिना सोचे समझे मार देते हैं. तो उसके वजह से उस वाइल्ड लाइफ की डेथ हो रही है, तो डेफिनेटली द पॉपुलेशन विल बी रिड्यूसिंग. Impact human welfare and have economic and social cost. This human wildlife conflict, it also has impact on human welfare and have economic and social cost. As I have told you that 15 crore is being used for mitigation purpose. Now what are the various reasons? Reasons क्या है human wildlife conflict के? Human population growth. Population जो है वो इंसानों की बढ़ती जा रही है. Now, as population increases, settlements expand, leading to wildlife encroachment. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रहने के लिए आवास की ज़रूरत बढ़ रही है, तो आवास के लिए अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है. तो जो आसपास का जो एरिया है फॉरेस्ट का, वो काटा जाता है. तो काटा जा रहा है का मतलब क्या हुआ कि वाइल्ड लाइफ में हम एनक्रोच कर रहे हैं. वी आर एंटरिंग इनटू द एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ. लैंड यूज ट्रांसफॉर्मेशन. Consequence of increasing demand for land, food production, energy and raw material. ये कॉन्सिक्वेंसेस क्यों राइज हो रही हैं? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है ज़मीन के लिए, भोजन के प्रोडक्शन के लिए खेतों की ज़रूरत बढ़ रही है, तो जंगल काट के खेत में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, एनर्जी के लिए और रॉ मटेरियल के लिए. रॉ मटेरियल के लिए जैसे तेंदू, शहद, इन सब के लिए भी जो है जंगलों में एनक्रोच किया जाता है. लकड़ी जलाने के लिए चाहिए होता है, तो भी जंगल काटा जाता है. Species habitat loss, degradation and fragmentation. This is also one reason of human wildlife conflict. Habitat जो है वो species, हर species का एक habitat होता है, हर प्राणी का एक आवास होता है. जैसे शेर का अपना आवास है, लेपर्ड का अपना आवास है. अगर उसका आवास खत्म होता जा रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है, फ्रैगमेंट होता जा रहा है,
तो भी जो है वन्य जीव ह्यूमन के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है। इंटरकनेक्टेड विथ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लैंड यूज चेंज। इंक्रीजिंग लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, सिमिलर टू द ह्यूमन पॉपुलेशन, ज़रूरत बढ़ रही है ह्यूमन की, सेटलमेंट के लिए एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उनकी जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि दूध की ज़रूरत बढ़ रही है, घी की ज़रूरत बढ़ रही है, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स के जो है वो डिमांड बढ़ रही है। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन इज राइजिंग, सो द लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज ऑल्सो राइजिंग। Now, this increased density in livestock production create an overlap of diets and forage competition with wild herbivores. Herbivores भी घास खाते हैं और लाइफ स्टॉक भी घास खाते हैं, तो इनका जो डाइट और फोरेज का जो कंपटीशन है वो वाइल्ड लाइफ के साथ, लाइफ स्टॉक का और वाइल्ड लाइफ का के बीच हो जाता है। एंड दिस रिजल्ट इन ओवरग्रेजिंग एंड डिक्लाइन ऑफ लोकल हर्बीवोर। इसका नतीजा क्या होता है कि ओवरग्रेजिंग हुआ, और जो लोकल हर्बीवोर है वहाँ के, जो जंगल में हिरन, चीतल, सांबर है, वो उनकी संख्या जो है वो घट जाती है। अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड प्रे। अबंडेंस प्रे लीड्स टू इंक्रीज प्रेडेशन। अगर प्रे की संख्या बढ़ रही है तो प्रेडेशन की संख्या बढ़ेगी, और प्रे की संख्या कम हो रही है तो डाइट प्रेडेटर की चेंज होगी, और वो किस पे फोकस करेगा? लाइफ स्टॉक पे। अगर उसको प्रॉपर प्रे नहीं मिल रहा है तो वो अपना भोजन किससे पूर्ति करेगा? लाइफ स्टॉक को मार के। तो दिस अगेन क्रिएट्स द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द ह्यूमन एंड द वाइल्ड लाइफ। Climatic condition, climatic factors is also one reason of human wildlife conflict. Seasonal changes in rainfall or temperature leads to diet and habitat change for animals. सीजनल चेंज जो हो रहा है, बरसात या गर्मी बहुत तेज़ पड़ना, तेज़ बहुत गर्मी होने की वजह से जो है वो डाइट भी चेंज हो रही है और हैबिटेट भी चेंज हो रही है, पानी की ज़रूरत बढ़ रही है, तो ये सब जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को रेस करते हैं। Now these are the various examples which we have always been seeing कि लायन जो है वो सड़कों पर आ गया है, टाइगर जो है वो जंगलों को छोड़ करके बाहर आ गया है, एलिफेंट देखिए आप, ट्रेन के सामने आ गया, तो एलिफेंट की भी डेथ हुई है और ट्रेन का भी नुकसान हुआ, और हो सकता है कोई ट्रेन रेलवे एक्सीडेंट भी हुआ हो। इन राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में बहुत ऐसे केसेस हैं, क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क के बीच में से रेलवे लाइन गुजरती है, तो उस ट्रेन के आगे भी जो है कई एलिफेंट्स और वाइल्ड एनिमल्स की जो है वो डेथ होती है। एंड वेरी कॉमनली वी नो अबाउट आवर कोटा सिटी ऑल्सो। कोटा में भी वही सेम कंडीशन है। मुकुंदरा नेशनल पार्क, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बीचों बीच में से रोड और रेल दोनों गुजर रहे हैं, और उसके ऊपर जो हैवी व्हीकल्स चल रहे हैं, फास्ट मूविंग व्हीकल्स, उनसे हिट होकर के कई एनिमल्स जो है उनकी एक्सीडेंटल डेथ होते हैं, और वन वन एंडेंजर्ड एनिमल के डेथ होना ही अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है। तो रोड एक्सीडेंट और ट्रेन एक्सीडेंट्स की वजह से भी बहुत सारे एनिमल्स की डेथ होती है और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रेस करते हैं। नाउ व्हाट आर द अफेक्टेड एरियाज फॉर बोथ, ह्यूमन के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, दोनों के लिए अगर हम देखें, लॉस ऑफ हैबिटेट है, ह्यूमन के लिए भी लॉस ऑफ हैबिटेट है तो एनिमल के लिए भी है। सिक्योरिटी, दोनों के लिए ही लॉस हो रहा है। रिसोर्सेस और लाइवलीहुड, क्रॉप्स का जो है वो ह्यूमन के लिए लॉस हो रहा है, और एनिमल्स के लिए भी लॉस ऑफ रिसोर्सेस है, वाटर बॉडी और फूड सोर्स के तौर पे। लॉस ऑफ लाइफ्स दोनों ही तरफ है। अगर वाइल्ड एनिमल ह्यूमन को मार रहा है तो ह्यूमन का लाइफ का लॉस हो रहा है, और अगर ह्यूमन जो है वो एनिमल को मार रहा है तो उस वाइल्ड एनिमल के लॉस हो रहा है। So these are the various affected areas for both. Now what we can see, how we can mitigate, कैसे हम उसको कर सकते हैं, that can be done by eco development. Now what is eco development? Development and sustainable utilization of natural resources with community participation. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी वहाँ रहने वाले लोग अगर मिल कर के जो है डेवलपमेंट भी चाहते हैं और सस्टेनेबल भी रहे, मतलब दोनों ही तरफ, ना जंगल को नुकसान हो ना इंसान को नुकसान हो, दोनों का ही काम पूरा होता रहे,
इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें कि वो ख़त्म भी नहीं हो और वो बराबर चलते रहें। अगर ये सब एक मैनेजेबल उसमें चलेगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से, तो दैट इज़ नोन एज द इको डेवलपमेंट। So eco-development, it is an approach to development through rational use of natural resources by means of appropriate technology and system of production which take into account and provide for conservation of nature, जिसको green development भी कह सकते हैं आप, because we want to save our biodiversity. So eco development planning can help in this sustainable development. Where it can be done in the buffer areas, conservation practices, and situation based. It can be situation based कि किस तरह का situation है वहाँ पर, क्या वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या किस तरह के वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. लुकिंग टू दैट सिचुएशन द डेवलपमेंट कैन बी डन. फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटी जैसे कि वन सुरक्षा समिति, NGOs can act as middleman, direct market and committee. So these can help in this eco development programs. Now the types of eco development practices are ecotourism, eco parks, plantation like timber, flower, fruit extraction, fodder, grass development, pasture land development, stall feeding. इको टूरिज्म से जो है इकोनॉमी अर्न की जा सकती है, इको पार्क से बायोडाइवर्सिटी दोनों में ही सेव हो सकता है इको टूरिज्म और इको पार्क्स में. प्लांटेशन से जो है ज़्यादा टिम्बर उगाया जा सकता है, फ्लावर्स और फ्रूट एक्सट्रैक्शन हो सकता है. तो प्लांटेशन अगर हम ज़्यादा करेंगे थ्रू दिस इको डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, तो वी कैन गिव गुड प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, फ्लावर एंड फ्रूट एक्सट्रैक्शन. और क्योंकि लाइफ स्टॉक का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, उनको भी भोजन चाहिए और वाइल्ड एनिमल्स को भी भोजन चाहिए. तो अगर हम लाइफ स्टॉक के लिए फॉडर ग्रास डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाते हैं और पेस्चर लैंड डेवलपमेंट, स्टॉल फीडिंग वगैरह करते हैं, तो लाइफ स्टॉक के लिए तो भोजन की उपलब्धि यहीं इको डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस के द्वारा किया जा सकता है. और जो अवेलेबल फूड है वो हर्बीवोर्स, जो वाइल्ड हर्बीवोर्स है उनके लिए अवेलेबल किया जा सकता है, so that both the livestock as well the wild animals can get the food and water. Now these are the various eco development practices. स्टॉल फीडिंग, जिससे कि लाइव स्टॉक के लिए जो है चारा वगैरह का बंदोबस्त किया जाए ताकि ये एनिमल्स जो है जंगलों में नहीं भटके. पैस्चर लैंड डेवलपमेंट अगर करते हैं तो वहाँ पर जो है घर चारा उगाया जा सकता है. सस्टेनेबल टिम्बर एक्सट्रैक्शन, सिर्फ गिरी हुई लकड़ी को ही उठाएं, ना कि पेड़ों को काटा जाए. प्लांटेशन किया जाए ताकि और ज़्यादा हरे भरे पेड़ उगाए जा सके. और इको पार्क्स का डेवलपमेंट. अल्टरनेट लाइवलीहुड कैन हेल्प ह्यूमन जो जंगलों में रह रहे हैं, क्योंकि अगर सेंचुरीज हैं तो पुराने टाइम से बहुत लंबे समय से रहने वाले जो गांव के लोग हैं वो वहीं बसे हुए रहते हैं, या आसपास गांव के जो पेरिफेरल एरिया में भी जो गांव बसे हुए हैं, तो जंगलों पर निर्भर होने के बजाय अगर उनको अल्टरनेट लाइवलीहुड का के बारे में अवेयरनेस दिया जाए, जैसे कि सिलाई बुनाई, टोकरी बनाना या ब्यूटीफुल जो है वो ऑर्नामेंट्स या पत्थर का काम, छोटे मोटे ऐसे काम हो जिससे कि आसपास गांव वालों का जो है वो गुजारा भी हो सके और वो जंगलों पर डिपेंड ना रह करके और जंगलों का नुकसान ना करें. इसके लिए वी कैन द अल्टरनेट लाइवलीहुड कैन ऑल्सो बी provided. Now project planning, analysis and monitoring. If this can be done properly, the development, that is the eco development, sustainable development for the wildlife as well human can be planned. जैसे कि कार्निवोर के लिए अगर करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग, तो एस्टिमेट अमाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कितना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कार्निवोर्स की वजह से. बेसलाइन डाटा जो है वो फॉरेस्ट से लिया जा सकता है, कैमरा ट्रैप्स लगाए जा सकते हैं. साइंस सर्वे और वाइल्ड प्रे डेंसिटी वर्सेस डोमेस्टिक प्रे डेंसिटी को स्टडी किया जा सकता है. वेजिटेशन सैम्पलिंग किया जा सकता है. सोशोलॉजिकल सर्वे और कंपनसेशन स्कीम्स
अगर मान लीजिए गांव वालों का कोई गाय भैंस को अगर वो मार देता है कार्निवोर, तो उसका कंपनसेशन दिया जाता है ताकि वो उस कार्निवोर को ना मारे। क्योंकि अगर गुस्से में आ जाते हैं इंसान, उनको लगता है ये हमारे गाय को इसने खा लिया, हमारे बछड़ों को खा रहा है या हमारे मुर्गियों को खा रहा है, तो उनके अंदर जो गुस्सा है उसकी वजह से उस कार्निवोर को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट इफ प्रॉपर कंपनसेशन स्कीम्स विल बी efficiently been running, that will this conflict can be avoided. सिमिलरली हर्बीवोर्स के लिए भी, क्योंकि हर्बीवोर्स में जैसे ब्लैक बक है, चीतल या नीलगाय, ये खेतों की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए भी जो है बेसलाइन डाटा स्टडी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंसेस ट्रांजेक्ट मेथड से जो है उनके पॉपुलेशन को स्टडी किया जा सकता है। जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, उनकी फूड प्रेफरेंस, उसको स्टडी किया जा सकता है। वेजिटेशन सैम्पलिंग और सोशोलॉजिकल सर्वे करके प्रॉपर एनालिसिस और प्लानिंग करके उसको हर्बीवोर्स को मॉनिटर किया जा सकता है ताकि किसी तरह का ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट? दो कोऑपरेटिव हो सकता है या असर्टिव। असर्टिव लो टू हाई चलेगा और कोऑपरेटिव जो है राइट टू लेफ्ट, लो टू हाई। तो ये कॉम्पिटिंग, कोलैबोरेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, अवॉइडिंग और एकोमोडेटिंग, ये 5 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट्स हो सकते हैं। जैसे एकोमोडेटिंग, इसमें क्या होता है, पीपल हु एकोमोडेट आर अनअसर्टिव एंड वेरी कोऑपरेटिव। जो वहीं पर ही रहते हैं वो क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट को गिव अप कर देते हैं कि ठीक है, गलती से हो गया है, इट्स नॉट अ बिग डील। इट पुट्स रिलेशनशिप फर्स्ट, ignores issues and try to keep peace at any price. शांति रखना चाहते हैं कि किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। इफेक्टिव व्हेन द अदर पर्सन और पार्टी हैज़ अ बेटर प्लान और सोल्यूशन। तो एकोमोडेटिंग में क्या है कि एकोमोडेट कर लेते हैं कि ठीक है, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देंगे, या हो भी गया है तो उसको वो इग्नोर कर दें। अवॉइडिंग, इट इज़ अगेन अनअसर्टिव एंड अनकोऑपरेटिव। इसमें अवॉइड किया जाता है जनरली। अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट एंटायरली और डिले द रेस्पॉन्स इंस्टेड ऑफ वॉइसिंग कंसर्न। शोर मचाने से ज़्यादा जो है वो अवॉइड कर देते हैं। कैन क्रिएट सम स्पेस इन एन इमोशनल एनवायरनमेंट। नॉट अ गुड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, पर ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है क्योंकि हर इंसान में इतना सब्र नहीं होता है। कोलैबोरेटिंग, दिस इज बोथ assertive and cooperative. Assert own views while also listening to other views and welcoming differences. This seeks a win-in-win outcome. दोनों तरफ, ना तो ह्यूमन को नुकसान ना वाइल्ड लाइफ को नुकसान। So identifying the underlying concerns of a conflict, it creates room for multiple ideas. कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो अंडरस्टैंड करें कि भाई क्या हैं, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो मल्टीपल आइडियाज़ से जो है ये उसको रिमूव किया जा सकता है। एंड इट रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट फ्रॉम बोथ पार्टीज। दोनों ही तरफ से जो है टाइम, समय और एफर्ट्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहले पूरा स्टडी करना कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है नुकसान, ये सब स्टडी करने के बाद अगर मल्टीपल आइडियाज़ से जो है उसको मिटिगेशन प्रॉपर मेजर्स लिए जा सकते हैं, तो इन विन आउटकम इट कैन बी इन अ assertive and cooperative manner. Competing, people who approach conflict in a competitive way assert themselves and do not cooperate while pursuing their own concerns at another's expense. इसमें एक विन होगा तो एक लॉस होगा। Approach where one person wins and one person loses. Does not rely on cooperation with the other party to reach outcome, may be appropriate for emergencies when time is important. Compromising, ये मॉडरेटली assertive और मॉडरेटली कोऑपरेटिव होता है। ट्राई टू फाइंड फास्ट, जल्दी पता चला सकते हैं। म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स दैट पार्शियली सेटिस्फाई बोथ पार्टीज। इसका रिजल्ट जो है दोनों तरफ लॉस है। और अप्रोप्रिएट टेम्परेरी सोल्यूशन है। इट कैन बी कंसिडर्ड एन ईजी वे आउट व्हेन यू नीड मोर टाइम टू कोलैबोरेट टू फाइंड अ बेटर सोल्यूशन।
नाउ द टाइप्स ऑफ प्रिकॉशन टेकन, क्या प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो फेंसिंग, फेंसिंग किस तरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक फेंस हो सकता है, बार्ब्ड यानी जो तारों का जो वायर वाला होता है वो, वुडन या बैम्बू का जो है फेंस, नेचुरल हेजर्स जैसे वो कांटे वाले जो कैक्टस वगैरह लगा करके नेचुरल हेजेस का भी जो है प्रोटेक्शन कर सकते हैं, सोलार फैंस एंड ट्रेंचस, ट्रेंचस जो बड़े बड़े लंबे से जो गड्ढे से खोदे जा सकते हैं, या तो अर्दन हो जो मिट्टी के हो या फिर सीमेंटेड हो, गार्डिंग जिसमें मचान बना करके जंगली जानवरों को जो है वो दूर से ही मचान पर बैठे हुए जो है वो उनके ऊपर मॉनिटर किया जा सकता है कि वो खेतों की तरफ ना आए या फिर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। लाइट्स, टॉर्च और इन सब से गार्ड एनिमल, चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न, या तो क्रॉप्स को ही जैसे पता है कि ये क्रॉप हर्बीवोर जो चीतल, सांबर या नीलगाय को पसंद है, बार बार इस खेत को नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं, तो ऐसे खेत लगाएं जिसमें वो उन्हें वो भोजन ही पसंद नहीं है और वो आए ही नहीं। सो चेंज द क्रॉप पैटिंग पैटर्न। नाउ विच वन इज़ बेस्ट, मिटिगेशन मेजर्स में कौन सा सबसे बेस्ट है। तो देर इज़ नो बेस्ट वे टू हैंडल, कोई भी तरीका बेस्ट नहीं होता है। क्यों? बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स अलग अलग होते हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं, ईच कॉन्फ्लिक्ट इज डिफरेंट एंड रिक्वायर्स अ डिफरेंट रेस्पॉन्स। सो एज ए सोसाइटी वी टीच टू हेड्स आर बेटर देन वन, दो सिर एक सिर से ज़्यादा बेटर है, दैट इज कोलैबोरेटिंग। किल योर एनिमीज विथ काइंडनेस, अपने शत्रुओं को जो है अपने स्वभाव से जो है वो मार सकते हैं, दैट इज एकोमोडेटिंग। स्प्लिट द डिफरेंस, जो डिफरेंस है उसको स्प्लिट कर दो, दूर दूर कर दो, कॉम्प्रोमाइजिंग। लीव वेल इनफ अलोन, अकेला छोड़ दो उसको, दैट इज अवॉइडिंग। माइट मेक राइट्स कॉम्पिटिंग। तो दिस वर द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। Now, as an ecologist or biologist, how you can deal with human wildlife conflict? विलिंगनेस होना चाहिए मदद करने के लिए, पेशेंस होना चाहिए सुनने के लिए, टॉलरेंस होना चाहिए सुनने के लिए, strategy and planning to last, definite implementation and case closing dedication. Thank you.